everyone. Welcome to my YouTube channel Karkan Education. Today we are going to discuss about the Mechanical Engineering Objective Series for RRB JEE, SSC JEE, BPSC Assistant Engineer, BPSC Assistant Professor and Lecturer इन सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रैक्टिस सेट 3 में आज बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. ए ऑब्जेक्ट और ए बॉडी is subjected to direct tensile stress of 300 megapascal in one plane enclosed by a simple shear stress of 200 megapascal. The maximum normal stress will be. तो first one is the what? Single shear plane. That means sigma max. तो sigma n max क्या हो जाएगी? Sigma n max equal to sigma x by 2 plus half of root under sigma x का whole square plus 4 into tau x y का whole square. So here we should insert that the numerical value sigma x is given as one plane, that is direct tensile stress, that is 300 megapascal divided by 2 plus half into root under, that is 300 का whole square. तो 300 का whole square that is 9000. 3 3 9 तो 4 हो जाएगी प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 2 2 दूनी 4 चौक 16. ओके, तो दिस वन इज गिवन एज दैट इज 150 प्लस 16 9 25 25 का क्या हो जाएगा 500, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 150 प्लस 250 इक्वल टू 400 megapascal. That is option D is correct. Then second question is a body is subjected to direct tensile stress of stress is 300 megapascal in one plane accompanied the simple shear stress of 200 megapascal. The minimum normal stress, so that is sigma mean, sigma n minimum equal to क्या आ जाएगी, that is sigma x by 2 minus half of the root under sigma x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर. तो हमने अर्लियर कैलकुलेशन किया तो क्या आ जाएगी 150 माइनस दैट इज 250 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी माइनस 100 मेगा पास्कल. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है? तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो दैट इज टाउ मैक्स इक्वल टू हाफ ऑफ रूट अंडर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर. तो यहां से अभी हमने जो सोल्व किया था तो ये कितना आया था, दैट इज 250 megapascal. That is option B is correct. A strain rotator are generally used for the measurement of linear strain or either longitudinal strain, measurement of the longitudinal strain. If a radius of wire stressed by a load is double, then Young's modulus will be what? Not affected by the load, that is remains unaffected. A stress and a stress analysis is conducted to know which of the following property. तो जो भी हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें किस टाइप का, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी का टेस्टिंग करते हैं, उससे ऑब्जर्व होती है. When a body is subjected to biaxial stress, the direct stress sigma x and sigma y in mutually perpendicular plane enclosed by the simple shear stress, then maximum normal stress is what? तो maximum normal stress क्या हो जाएगी, that is sigma x plus sigma y by 2 plus
सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. Then when a body is subjected to biaxial stress, that is direct stress, तो इसमें हम बात करते हैं मिनिमम. तो इसमें क्या आ जाएगी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस हाफ ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर इंटू 4 टाउ एक्स वाई, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो क्या हो जाएगी, ओनली हाफ पोर्शन बचेगी. देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दैट मीन्स दिस वन, हाफ ऑफ द sigma x minus sigma y, half of the sigma x minus sigma y का whole square plus 4 tau x square. This one is maximum shear stress. When a body is subjected to direct stress sigma x in one plane and simple shear stress is tau x by, then maximum stress. So sigma x plus sigma y by 2, that is option A is correct. Simply मिनिमम में क्या आ जाएगी, सिग्मा एक्स बाई 2 माइनस दिस वन इज दिस सी. देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगी इस केस में, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is subjected to tensile stress 1200 megapascal on one plane and another tensile stress is 600 megapascal on right angle to the former. It is also subjected to shear stress is 400 megapascal on the same plane. Then maximum stress, that means ये क्या है, that is biaxial stress. तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, that is sigma n maximum, है ना. तो सिग्मा एन मैक्सिमम क्या हो जाएगी आपका, सिग्मा एन मैक्सिमम हो जाएगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस हाफ ऑफ दी, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ ऑफ दी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर. तो यहां पे हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो क्या है, 1200 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ ऑफ दी रूट अंडर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगी, 1200 माइनस 600 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 400 का होल स्क्वायर. तो ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एन मैक्स, ओके, तो 12 6 18, दैट इज 900 प्लस ये क्या आ जाएगी 600, हाफ ऑफ दी 600 दैट इज 36,000 प्लस 64,000. तो ये क्या आ जाएगी 900 प्लस दैट इज कितना 1000, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 900 प्लस 500 इक्वल टू क्या आ जाएगी 1400 मेगा पास्कल, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. वेन इसी में अब क्या है, नेक्स्ट पार्ट जो है आपका पूछा गया है कि मिनिमम, तो मिनिमम हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है ना, तो हमारा कितना आ रहा था कि आपका यहाँ पे सिग्मा एन मिनिमम क्या हो जाएगी, दैट इज 900 माइनस दिस वन इज माइनस ये आपका वैल्यू कितना आया था, दैट इज 500. तो इस केस में क्या हो जाएगी, दैट इज 400 मेगा पास्कल, दिस वन. देन करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेस की हम जब बात करेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ एक्स बाई इक्वल टू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ एक्स बाई का होल स्क्वायर. तो जब हम अभी इसे कैलकुलेट किए थे तो कितना आ गई थी, दैट इज 500, है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट. A body is subjected to two normal stress. Sigma x is 20 kilonewton per meter square tensile and 10 kilonewton per meter square is compressive acting at perpendicular to each other. Then maximum shear stress is.
तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा कितना होगा? तो इस केस में देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की हम बात करेंगे तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, है ना, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर हाफ, है ना। तो यहां पे इंसर्ट करेंगे हाफ रूट अंडर सिग्मा एक्स इज 20 and this one is compressive, that is minus 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 plus 10 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू शियर स्ट्रेस यहाँ क्या है, दैट इज 0, दैट इज क्या हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज क्या होता है, दैट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होती है, 1/2 ऑफ द algebraic difference of the maximum and minimum, 1/2 of the maximum algebraic difference, the radius of Mohr circle of the two unlike principal stresses of magnitude is। तो यदि हमारा दो ये है तो रेडियस ऑफ मोर सर्कल क्या होता है, r इक्वल टू हाफ ऑफ, है ना, यहां से बात करते हैं कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई का 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या बोल रहा है, टू अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, तो इसमें क्या है एट द प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करेंगे तो टाउ एक्स बाई क्या हो जाएगी, वैल्यू 0, तो दैट मीन्स हाफ इनटू सिग्मा एक्स को हम सपोज हम क्या करते हैं पी एज्यूम किए, तो अनलाइक दैट मीन्स अपोजिट, तो प्लस क्या हो जाएगी पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का 2, ये यहाँ पे 2 नहीं रहेगी तो ये आ गया और ये 4 भी नहीं, है ना फॉर्मूला में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2p डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर 2 कैंसिल आउट, तो p स्क्वायर दैट इज p बचेगी। इट इज क्लियर। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए मोर सर्कल इज इक्वल टू, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये क्या होता है हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल होता है ना, ये हमारा जो है रेडियस ऑफ द सर्कल। मोर सर्कल इज यूज्ड टू डिटरमिन द स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू, है ना, तो इसमें क्या है आपका ऑब्जेक्टेड टू क्या होता है, इस केस में जब आप बात करेंगे तो आपका आइदर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन बाय शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस। देन when a body is subjected to direct tensile stress sigma x and sigma y, two mutually perpendicular direction acknowledged by the couplet by the simple shear stress, then Mohr circle method, तो what is the circle radius is taken as, तो रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो सर्कल रेडियस क्या होता है हाफ, यहाँ पे हाफ ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर हम ये कर देते हैं, है ना। देन इन मोर सर्कल द सेंटर ऑफ सर्कल इज, सेंटर ऑफ सर्कल हम क्या बताते हैं, तो मोर रेडियस सर्कल में क्या होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर जो होता है हमारा बाई एक्सिस पे हमारा सेंटर होता है। द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी डायमीटर ऑफ मोर सर्कल रेडियस इज, तो इसमें हम क्या बात करते हैं कि इसमें हम नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन एट क्या बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, है ना, दैट इज बी नॉर्मल स्ट्रेस एट द सेक्शन प्लेन। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू द मोर्स रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, यस इट इज करेक्ट, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वही क्या होता है मोर सर्कल का रेडियस होता है। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी, क्या है दैट इज
strain energy stored in a body when strain within the elastic limit. यहाँ पे क्या है, strain within the elastic limit is known as क्या है, strain energy. टोटल स्ट्रेन एनर्जी, अब देखिए उसी क्वेश्चन को बोला गया है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, है ना, इज नोन एज क्या होता है, रेजिलेंस. उसमें क्या था, एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज क्या था, क्या था इसमें अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट, लेकिन यहां पे क्या हम बात कर रहे हैं कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी. अब हम क्या बात कर रहे हैं कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज क्या है, रेजिलेंस, है ना, दैट इज नोन एज रेजिलेंस. देन प्रूफ रेजिलेंस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी व्हिच कैन स्टोर्ड इन ए बॉडी अप टू द इलास्टिक लिमिट. यस और नो? यस, क्योंकि प्रूफ रेजिलेंस जो रेजिलेंस होता है, प्रूफ रेजिलेंस इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन अप टू इलास्टिक लिमिट. प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज नोन लाइक मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस. एस, प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस. एस. अब यहां पे फिर से अगेन स्ट्रेन एनर्जी इज, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, है ना, स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट. द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन सडनली द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद द सेम लोडेड इज लोड अप्लाइड ग्रेजुअली. तो ये क्या हो जाता है, ये जो होता है 4 टाइम्स होता है, तो इसमें कैसे होता है, ये जो हमारा है U इज द स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू हमारा क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर V अपॉन 2E. तो हम बात करते हैं कि U क्या है, सडनली, सडन यदि होगा तो U सडन हमारा क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है. तो ये 2 सिग्मा का होल स्क्वायर इंटू V अपॉन 2E एंड U जो है ग्रेजुअली that is sigma square V upon 2E. तो अब इसको देखिए क्या है, इसका 2 दूनी 2 दूनी 4, तो that is 4 टाइम्स. रेजिलेंस इज, अब देखिए आ गया रेजिलेंस. तो रेजिलेंस हम इसको क्या बात करते हैं कि प्रूफ रेजिलेंस हमारा क्या होता है ना, जब हम 31 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, तो रेजिलेंस क्या कहलाता है कि मैक्सिमम एनर्जी नहीं, एनर्जी स्टोर्ड भी नहीं, स्ट्रेन एनर्जी. रेजिलेंस क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी विच स्टोर्ड इन द अप टू इलास्टिक लिमिट. तो यहां पे कोई भी ऑप्शन है नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन डी. अब और प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस. द टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन ए बॉडी इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ रेजिलेंस. गलत, क्योंकि टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड क्या था, रेजिलेंस, क्योंकि टोटल स्ट्रेन एनर्जी. मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस ऑफ द प्रूफ रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. एस. स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड. तो सिग्मा स्क्वायर V अपॉन 2E. द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज डैश दैट स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली. तो इसमें क्या बात कर रहा है, स्ट्रेस की, नॉट स्ट्रेन. तो स्ट्रेस में क्या होता है, ट्वाइस होता है, दैट इज ट्वाइस. जस्ट 1 मिनट. सडनली लोड इज, तो सडनली में सॉरी दिस वन इज हाफ हो जाएगी, ग्रेजुअली से कंपेयर करना है. द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लोड विदाउट सफरिंग परमानेंट डिस्टॉर्शन इज known as, that is called
प्रूफ रेजिलेंस, है ना, अप टू प्रूफ रेजिलेंस। द कैपेसिटी ऑफ a strained body for doing work on the removal of the stretching force is known as resilience. Is known as resilience. Which of the following is correct? तो energy stored in a body when strained within elastic limit is known as strain energy. It is correct. Maximum strain energy which can be stored in a body is termed as proof resilience. Yes, correct. Proof resilience per unit volume of the material is known as modulus of resilience. Yes, correct. That is all of these. The stress due to suddenly applied load as compared to a stress due to same load gradually applied is what? तो इस केस में हमारा क्या होता है? That is लोड। तो यहां पे क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए हो जाती है इसमें, किस में? ग्रेजुअली में। और सिग्मा सडनली जो होती है 2p बाई ए हो जाती है। ए लोड W इज अलाउड टू फॉलन, है ना, फॉलन। तो इस केस में क्या है? ऑलरेडी देखिए कि इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि सिग्मा ग्रेजुअली, है ना, सिग्मा ग्रेजुअली क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, एंड सिग्मा सडन जो है 2p बाई ए है। तो किसका बीच का रेशियो पूछा है? रेशियो ऑफ सडनली अप्लाइड टू दी सेम ग्रेजुअली। तो क्या हो जाएगी? सिग्मा सडन अपॉन सिग्मा ग्रेजुअली, दैट इज 2p बाई ए इंटू p बाई ए कैंसिल दिस, दैट इज 2। In a beam, single load W is applied gradually and deflection under the load is delta L, then strain energy is, तो क्या हो जाएगी? W into L delta L by 2. A beam which is fixed at one end and another is free, that is called cantilever beam. क्या होता है? ये फिक्स होता है इधर और इधर आपका फ्री है, that is cantilever beam. The modulus of elasticity of the aluminum is, ये क्या है? 6.89 into 10 to power 10। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका होता है? एल्यूमिनियम का। ये क्वेश्चन आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो है अभी बीटीएससी के हुआ उसमें आया था। दिस क्वेश्चन, which of the following variable is essential for calculating the maximum shear stress in torsion? तो which of the following parameter, तो आपका क्या है? देखिए आपका बोल रहा है कि टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाता है? पाई अपॉन 16, है ना, टाउ टी, है ना, डी क्यू, है ना। तो इसमें ये डायमीटर, दैट इज ये क्या है? रेडियस जो है हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट, और इसको टी इक्वल टू पाई बाय 16। ए टेंसाइल लोड 60 किलो न्यूटन gradually applied to circular bar 4 centimeter diameter and 4 meter long. The value of elasticity is equal to this and determine the stretch of the rod. ये क्वेश्चन भी आपको बीपीएस ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर में आया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आईटीआई इंस्ट्रक्टर, है ना। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? पी एल अपॉन ए ई। तो पी हमारा क्या है? 60 किलो न्यूटन, तो 60 इंटू 10 टू पावर 3। लेंथ क्या है? 4 मीटर, तो इसको एमएम में कन्वर्ट कर दिए, दैट इज 4000 डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज पाई बाय 4, दैट इज 4 सेंटीमीटर, दैट इज 40 mm इंटू 40 mm इंटू ई, दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर 5। तो देखिए आपका यहां से क्या है? 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 4 5, 1 2 1 2 1 1, यहां से ये, तो टोटल आपका क्या हो गया? यहां से 3 दूनी 6, दैट इज 2 अपॉन पाई इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0.64 mm, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए बीम इज सपोर्टेड एट बोथ एंड इज नॉट ए सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना, फॉल्स। क्या होता है? वो सिंपली सपोर्टेड। ए बीम एक्सटेंडिंग बिहाइंड द सपोर्ट इज कॉल्ड, दैट इज ओवरहैंगिंग बीम। क्योंकि आपका ये क्या है? बिहाइंड द सपोर्ट, जैसे इस तरह से लोड है, एक यहाँ पे है
और एक यहाँ पे है, तो इधर जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ओवर हैंगिंग बीम. A beam incasted at both ends. Incasted means fixed at both ends. That is called fixed beam. A beam supported more than two support. That is called continuous beam. यदि दो ये बीम है, एक सपोर्ट यहाँ पे है, एक सपोर्ट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो तीन सपोर्ट हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कंटिन्यूअस बीम. ए कैंटिलीवर बीम इज वन व्हिच. तो कैंटिलीवर बीम क्या होती है? आप यहां से देख सकते हैं, कैंटिलीवर एक फिक्स है, एक एंड फ्री है, तो फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड. तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रैक्टिस सेट 3 में 50 क्वेश्चन फिर से किए. तो अप टू दिस वन, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स, देन यू हैव टू कमेंट देम. और यदि आपका कहीं सजेशन है तो आप कमेंट में कमेंट करें. और यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.